So in this class we will be discussing about our chapter that we were doing decimals. So topic for today is comparing the decimals. Okay, so for today we will be discussing about how we will be comparing decimals. Okay, comparing means what? See, just simple things you have to remember. Comparing, that means if you are having two numbers, है ना, without decimal numbers are there, suppose 1 is 4, 1 is 6, you can easily identify. तुम बता सकते हो that sir 6 is greater than 4. तुम कहोगे sir 6 बड़ा है 4 से. But when there are decimal numbers, then how to compare? तब कैसे compare करेंगे? Suppose you are given with 0.4 and 0.6. Now you can compare again. See, to compare decimal numbers, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे compare करते हैं decimal numbers को. You will check according to places. See, you will check ones, tens, 100. Okay, then this side you will be having 10th, then 100th. Always you will check from the right side. देखो right side से check करना है, इधर से, यहाँ पे, sorry, left side. Always you will check from the left side. See, मैंने अभी यहाँ पे दो नंबर लिखे हैं 0.4, 0.6. क्या इसमें कोई 100 प्लेस है? नहीं है. क्या इसमें कोई 10 प्लेस है? नहीं है. फिर देखो, क्या इसमें 1 प्लेस है? Yes, they are having 1 place. 1 place both are having. 1 is 0.4, 1 is 0.6. See, 1 place is 0. देखो, दोनों की जो 1 प्लेस है वो इक्वल है. दोनों का 1 प्लेस क्या है? इक्वल. सो दैट मीन्स हम अब आगे मूव करेंगे. इसके ऊपर हम डिसाइड नहीं कर सकते. देखो, अगर एक नंबर होता 0.4 और एक होता 1.4, सपोज वन नंबर इज 0.4, वन इज 1.4, देन सी द 1 प्लेस. यहाँ पे 1 प्लेस है 0 और यहाँ पे 1 प्लेस क्या है? 1. ओके, सो दैट मीन्स this 1 is greater than 0. 1 is greater than 0. So I will tell that 1.4 is greater than 0.4. 1.4 बड़ा है 0.4 से. ओके, बट इन दीज टू केसेज, इसमें और इस केस में ना क्या डिफरेंस है? देखो, यहाँ पे 1 प्लेस सेम है, दोनों में 1 प्लेस 0 है, तो हम नहीं बता सकते कौन सा बड़ा है. सो वी विल लुक फॉर 10th प्लेस. नाउ 10th प्लेस, here it is 4, here it is 6. So which one is greater? This one. So we will be writing 0.6 is greater than 0.4. Okay, let us take one more example. एक और example लेते हैं. Suppose we are given with 0.04, 0.004. Now which of the number is greater? See again, ones place is this one, ones place is this one. Same one, ones place जो है दोनों की same है, तो यहाँ से पता नहीं लगेगा. 10th प्लेस को चेक करते हैं. 10th प्लेस देखो, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो इसका मतलब यहाँ से भी ये पता नहीं लगा कौन बड़ा है. 100th प्लेस चेक करो. 100th प्लेस, इसमें 100th प्लेस क्या है? 4. इसमें 100th प्लेस क्या है? 0. देखो, 100th प्लेस पे 4 है, 100th प्लेस पे यहाँ 0 है, तो 4 इज ग्रेटर देन 0 ना. सो दैट मीन्स 0.04 इज ग्रेटर देन 0.004. So this is how you will be comparing the decimal numbers. Okay, now we will be doing a topic that is really very important. That is the conversion in decimal for some length, quantities. Okay, we will be talking about some quantities and we will convert these quantities in decimals. Okay, सबसे पहले हम इन quantities में बात करते हैं money की. ठीक है, we will be talking about money. Now how to convert? See, you all know, if you are having 1 rupees, within 1 rupees you are having how many paise? It is 100 paise. Okay, yes, 1 rupees you are having 100 paise. So that means sometime na you will see a questions like this. You are given with 700 paise. So 700 पैसे आर इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज? कितने रुपीज होते हैं 700 पैसे?
दैट इज 7 रुपीज बाई डिवाइडिंग वी कैन ईजिली कैलकुलेट, है ना, हम डिवाइड करके बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर 1 रुपीज में 100 पैसे हैं तो 700 पैसे में कैसे आएगा, वी विल डिवाइड इट विद 100, सो 0 to 0 कैंसिल, दिस 0 to दिस 0 कैंसिल, एंड वी आर लेफ्ट विद 7 रुपीज। दैट मीन्स व्हाट, वी कैन कैलकुलेट, हम कैसे, जब हम पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, इफ वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम पैसे टू, पैसे को किस में कर रहे हैं, रुपीज, सो वी विल बी डिवाइडिंग विद व्हाट, वी विल बी डिवाइडिंग विद 100, हम हमेशा 100 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड विद 100। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विद इन 1 रुपीज हाउ मेनी पैसे आर देयर, 100 पैसे। So if we are moving from small quantity to large quantity, we always do what, division, so we have to divide. Now suppose you are given with 70 paise, okay, you are given with 70 paise, so in 70 paise how many rupees are there, you will again divide with 100, so 70 divided by 100. Now see, this 1 0 will cancel this 1 0, एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो गई, लेकिन अभी एक जीरो बची है ना, तो मैंने तुम लोगों को डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाया था। इफ 1 0 इज लेफ्ट, दैट मीन्स वी विल टेक डेसिमल आफ्टर दिस 1 डिजिट, सो इट विल बी 0.7 रुपीज, सो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, अगेन सपोज यू आर गिवन विद 135 पैसे, you are given with 135 paise, so how you will convert, you will take 135 divide by 100, so this 0 will take which one, 5, so we will be writing 5, this 0 will take which one, 3, so we will be writing 3. Now we are not left with any 0, अब 0 नहीं बची ना, तो we will put point, we will take decimal and 1, so how many rupees are there, rupees 1.35, okay, so let us take some more examples, और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज यू आर गिवन विद अ क्वेश्चन, मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, रुपीज 10 एंड 35 पैसे, you are given with rupees 10 and 35 पैसे and you have to convert the thing, इस पूरे को तुम्हें कन्वर्ट करना है किसमें, रुपीज में, in rupees you have to convert. See this 10 is already in rupees, ये 10 पहले से रुपीज में है, तो हम 10 को तो एज इट इज लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, प्लस ये जो 35 है ये पैसे में है, इसको कन्वर्ट करना है, तो 35 को डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, सो ये वाला 10 तो एज इट इज रहेगा, प्लस देखो अब ये वाली जीरो किसको लेगा, 5, ये वाला जीरो किसको लेके आएगा, 3, देन डेसिमल, क्योंकि दोनों जीरो ओवर, सो डेसिमल, सो हाउ मच आंसर वी आर गेटिंग, 10.35, जब हम इसको ऐड करेंगे वी विल बी गेटिंग 10.35 रुपीज। मैंने ऐड करना तुम लोगों को सिखाया था, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के कैसे ऐड करना है, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, सपोज यू आर गिवन विद 63 पैसे, 63 पैसे है, इसको कन्वर्ट करेंगे, देखो 63 डिवाइडेड बाय 100, 1 0 will take this 3, 1 0 will take this 6, now we are left with nothing, 0 नहीं बचा, so we will put decimal and it is 0.63 rupees. So this is how you will be converting from paise to rupees. Okay, if we are converting it, see this 90 is already in rupees and we have to convert this 90 paise, so it will be 90 divided by 100. So we can do one thing, see this 0 will take this 0, either we can cancel or we can write it, हम directly लिख भी सकते हैं, see this 0 will take this 0, this 0 will take this 9, now we will put decimal, okay, so 90 plus 0.90, it will be 90.90, so that is the answer we are getting, 90.90. okay, so we have discussed about this one, ये हमने मनी वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया अभी कि कैसे हम मनी चेंज करते हैं, मतलब पैसे टू रुपीज या रुपीज टू पैसे कैसे कन्वर्ट करने हैं। अब हम करेंगे लेंथ के लिए, ठीक है, तो लेंथ के लिए देखते हैं, लेट अस टॉक अबाउट लेंथ।
अब देखो लेंथ जो है ना वो मीटर में भी हो सकती है, किलोमीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स। देखो अगर मान लो मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम अपने नोटबुक की लेंथ मेजर करो तो तुम्हारी वो सेंटीमीटर में आ जाएगी ना। मान लो तुम कहोगे सर ये 20 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। अगर मैं तुमसे कहता यस हूं सर। कि भाई यहां से लेके एक रोड को मेजर करो, ठीक है, रोड को मेजर करना है, मान लो तुम स्कूल से तुम्हारा घर कितनी दूर है, तो तुम कहोगे सर 2 किलोमीटर है, कोई कहेगा 3 किलोमीटर है, कोई 5 किलोमीटर, यस कुछ सर। भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ भाई तुम्हारी हाइट कितनी है, हाउ मच मीन्स यू आर हैविंग, तो तुम बोलोगे सर 4 मीटर, या तुम्हारे कपड़े की लेंथ कितनी है, 3 मीटर, 4 मीटर, 7 मीटर। सो फॉर लेंथ वी आर हैविंग डिफरेंट यूनिट्स, है ना। लेंथ के लिए हमारे पास अलग अलग मेजरमेंट के लिए अलग यूनिट्स हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाउ डू वी कन्वर्ट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं ना इनको कन्वर्जन की, तो हमें ध्यान रखना होता है विद इन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में हमारे पास होते हैं 1000 मीटर, ठीक है। 1 मीटर में विद इन 1 मीटर वी आर हैविंग 100 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर में हमारे पास होते हैं 10 मिलीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। तो ऐसे हमें याद रखना पड़ता है इसको कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। लेकिन और भी यूनिट्स होती हैं, जैसे डेसीमीटर भी होता है, ठीक है, हेक्टामीटर भी होता है, डेकामीटर भी होता है, ठीक है, ये भी यूनिट्स होती हैं। तो हम कैसे याद रखेंगे पूरी चीज़ों को। देखो हम ना एक ऐसे लिखते हैं, अब ये देखो मैंने क्या लिखा है, KHDMDCM, है ना। ये देखो अब इन सब के साथ ना मैं एक एक एम और लगाता हूं, सिर्फ इस वाले एम के साथ नहीं लगाना है, बाकी सबके साथ एक एक एम और लगाना है। देखो ये DAM होता है, ये HM होता है, हेक्टामीटर, ये किलोमीटर। अब एक चीज देखो, ये मैंने कैसे लिखा, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। देखो अगर मुझे किलोमीटर से मीटर तक जाना है, किलोमीटर से मीटर तक, तो मैं कितने स्टेप्स जाऊंगा, 1 2 3, 3 स्टेप्स ना। तो देखो 3 स्टेप्स। इसका मतलब ऊपर ध्यान देखो, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 1000 मीटर। मैंने 3 जीरोज लगाए हैं, देखो यहाँ पे मैंने कितना जीरोज लगाया, 3 जीरोज, क्योंकि मैंने यहाँ पे किलोमीटर से मीटर तक जाने में कितने स्टेप्स लिए, 3 सर स्टेप्स। आपका आवाज ठीक से नहीं ओके, सुन रहा है सर। अगर मान लो मैं जाता हूं, अगर देखो किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 3 स्टेप्स, तो 3 जीरोज। देखो अगर मैं कहता हूं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो देखो मीटर से सेंटीमीटर, अगर मैं मीटर से सेंटीमीटर जा रहा हूं कितने स्टेप्स गया मैं, ओनली 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स। सो आई एम टेकिंग हाउ मेनी जीरोज, 2 जीरोज। देखो ध्यान से देख रहे हो ना, इफ आई एम गोइंग फ्रॉम मीटर टू सेंटीमीटर आई एम टेकिंग 2 स्टेप्स, so that means I am taking 2 zeros. Now if I have to move from centimeter to millimeter, अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाते हैं तो हम कितने स्टेप्स जा रहे हैं, we are One moving step. only 1 step, so I am taking 1 zero, that means 1 centimeter equal to 10 millimeter. So this is the whole concept. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसको सीक्वेंस में कैसे याद रखते हैं, KHDMDCM कैसे याद रखेंगे हम इसको। देखो सबसे पहले K, फिर H, फिर D, फिर M, फिर D, फिर C, फिर M। इसको कैसे याद करोगे तुम लोग। देखो इसमें ना एक लाइन मैं रिपीट करूंगा तो उसको तुम लोग याद रखना। देखो K फॉर कल हम दोबारा मिलेंगे डांस क्लास में, दैट इज द सिंपल थिंग टू रिमेंबर, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। आई विल राइट हियर, कल हम दोबारा मिलेंगे डांस क्लास में, है ना, कल हम दोबारा मिलेंगे डांस क्लास में। तो इससे तुम लोगों को ना बहुत इजीली याद हो जाएगा, ये तुम्हें हमेशा याद रहेगा, कल हम दोबारा मिलेंगे डांस क्लास में। देखो कल से क्या लिखा मैंने, के,
H से क्या लिखा, हमसे H, दोबारा से D, मिलेंगे M डांस क्लास में, और उसके बाद क्या करना है, सबके साथ M लगाना है, ठीक है, यहाँ पे A भी लगा सकते हो, फिर इसके साथ नहीं लगाना है, बाकी सबके साथ, ठीक है। अब तुम इजीली, तुम्हारे लिए बहुत सिंपल रहेगा। अब देखो किलोमीटर से मीटर में जाना है, किलोमीटर से मीटर तो कितना जाना है, 3 स्टेप्स, 3 स्टेप मतलब 1000। मीटर से अगर सेंटीमीटर जाना है 1 2 मतलब 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल लगेगा, बस यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। कल हम दोबारा मिलेंगे डांस क्लास में, ओके। सर अब देखो कन्वर्जन करना कैसे है, पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ इधर से थोड़ा सा, ओके। नाउ जस्ट सी वन थिंग, इफ यू आर गिवन विद 3 किलोमीटर एंड दे आर आस्किंग 3 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। इफ 3 किलोमीटर, देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितना 1000, तो 3 में कितना आएगा, 3 इंटू 1000, सो इट विल बी 3000 किलोमीटर meters, okay, so 3 kilometer is 3000 meter, and one more thing you have to remember, देखो एक और चीज याद रखनी है, if you are moving from left to right, see, if you are moving from left to right, you will be doing what, multiply, okay. If you will be moving from left to right, when you are moving from left to right का मतलब क्या है, देखो अगर मैं किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करूंगा या मैं मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, दैट मीन्स ऑन दिस सीक्वेंस, ये जो मैंने सीक्वेंस लिखी है ना, मैं इसमें अगर कहां से लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा, देन आई विल मल्टीप्लाई। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। But if I am going from right to left, then I will be doing what, division। अब देखो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। Suppose you are given with 700 meters, okay, you are given with 700 meter and you have to convert it into kilometer, कि 700 मीटर में कितने किलोमीटर हैं। देखो मीटर तुम्हारा ये रहा, ये वाला जो है this one is your meter, okay, this one is your meter and you have to convert in what, kilometer। Where is kilometer, this one is in kilometer, so you will be coming from right to left। देखो right से left जा रहे हो ना, so right से left जाने में हम क्या करते हैं, what we do when we are going from right to left, we do division। so 700 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, देखो कितने स्टेप जा रहा हूं मैं, 1 2 3, सो आई विल बी डिवाइडिंग बाय 1000, क्योंकि देखो 1 किलोमीटर में कितना था, 1000 मीटर, सो आई विल बी डिवाइडिंग बाय 1000। नाउ 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, this 0 will take which one, this 0 will take 7, so I will be writing 0.7 किलोमीटर। so this is how we convert, ऐसे कन्वर्ट करना है, this is the simple method। see, एक सर और लेते और हैं, एक बार बताओ सर। हाँ, सपोज वी आर गिवन विद 1425 मीटर, 1425 मीटर एंड वी हैव टू कन्वर्ट इन किलोमीटर, हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है 1425 मीटर को। देखो अब फिर से यहाँ पे ध्यान दो, वेयर इज योर मीटर, दिस वन, दिस इज योर मीटर एंड यू हैव टू कन्वर्ट इन किलोमीटर। तो तुम कहाँ पे जा रहे हो, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देखो राइट से लेफ्ट की तरफ 1 2 3 स्टेप, so you will be dividing 1425 by 1000, क्योंकि जब भी राइट से लेफ्ट जाएंगे तो क्या करना है, डिवाइड करना है। so this 0 will take this 5, this 0 will take this 2, this 0 will take this 4, now we are left with decimal and then 1, so what is our answer, 1.425 kilometer, so this is our answer। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सपोज यू आर गिवन, नाउ you are given with 70 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू कन्वर्ट इन मीटर। देखो 70 सेंटीमीटर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। अब यहाँ पे ध्यान दो, वेयर इज योर मीटर, सेंटीमीटर, पहले तो सेंटीमीटर देखो कहाँ है, ये रहा सेंटीमीटर, एंड वेयर इज मीटर, ये रहा मीटर,
ठीक है। अब देखो तुम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हो, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? यू आर कमिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखो लेफ्ट 1 2, you are coming two steps na, so you will be dividing 70 by 100, so 0 to 0 cancel, then this 0 will take this 7, so you are left with 0.7 meter. Okay, suppose one more question, you are given with 20 millimeter. Suppose you are given with 20 millimeter and you have to convert in centimeter. So you will look for millimeter. Millimeter के लिए check करो. Where is millimeter? This one. This is millimeter. And you are coming to centimeter. So again you are coming from right to left. Right से left की तरफ आ रहे हो. So that means you will be dividing by how many steps you are coming? 1. 1 So you will be dividing by 10 or 100? Only 10. 10 So 0 to 0 cancel. You are left with only 2. So that means it is 2 centimeter that you are getting. 20 millimeter is equal to 2 centimeter. I hope it is clear now. So when we are converting ना, देखो ये तो पहले ही किलोमीटर में है. We have to convert in किलोमीटर ना, किलोमीटर में करना है. ये तो ऑलरेडी किलोमीटर में है, this one. So we will write it plus then 460 is there, so 460 को डिवाइड करना है किससे? 1000 से, because you know 1 kilometer is 1000 meter, so that means you are dividing, so 0 to 0 cancel, so you are left with 3 plus this 0 will take this 6, this 0 will take this 4, then 0 point, so it will be 0.46, so 3.46 kilometer. This is your complete answer. Many of the students have done correct. Okay, see, 1 is already in meter, तो इसको कोई conversion की ज़रूरत नहीं है. Plus, now 3 सेंटीमीटर, इस 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. तो सेंटीमीटर से मीटर, देखो हम सेंटीमीटर मीटर, तो इसका मतलब 100 से डिवाइड करना है. We are dividing by 100. So 1 plus. Now see, this 0 will take this 3. So I will write 3. Now this 0 will take which one? Nothing. इस 0 के लिए कुछ नहीं है ऊपर, so we will take this 0. Then we will put decimal, then 0. So how much? 1.03. This is the answer we are getting in meters. Wait now. Okay, so let us check. For weight, I will clear all these things. Okay, for weight also we are having the same as in length we do. Okay, see, you all know one thing, in 1 kg, 1 kg is equal to 1000 gram, and 1 gram equals to how many? 100 or 1000 milligram. Okay, if we are writing, it is 1000 milligram, 1 kilogram 1000 gram, okay, 1 gram 1000 milligram. See, again you can do, if you are given y, k, h, d, m, okay, फिर okay, अब की बार देखो इनके साथ पहले हमने क्या लगाया था? M लगाया था, अब हम G लगाएंगे. नाउ वी विल बी पुटिंग G विद देम. ओके, और इस वाले M की जगह हम क्या बना देंगे? G. इस वाले M को क्या बनाना है? G. बाकी सब में G लगा दो. ओके, सो सी, ग्राम से अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, अगर ग्राम से किलोग्राम में, हम कहाँ पे आएंगे? लेफ्ट साइड. और कितने स्टेप आएंगे? 3 स्टेप. सो वी विल बी डिवाइडिंग. देखो अगर मान लो मेरे पास है 700 ग्राम, 700 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है. आई हैव टू कन्वर्ट इट इन केजी. 700 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है. सो आई विल बी मूविंग लेफ्ट साइड 3 स्टेप्स. ओके, सो इट विल बी 700 डिवाइडेड बाय 1000. Why I am dividing with 1000? See, 1 kg is 1000 gram now, and I am coming left side. So I am dividing, 0 to 0 cancel, this 0 to this 0 cancel, and I am left with how much? 1 0. So it will be 0.7
kg. So you will be writing 0.7. Again, if you are given with 200 milligram, okay, you are given with 200 milligram and you have to convert in gram. इसको ग्राम में convert करना है. So where is our milligram? This one. Where is gram? This one. So I am moving from right to left. 1, 2, 3. So what I will be doing? 200 divided by 1000. So 0 to 0 cancel, 0 to 0 cancel. So again we are left with this one. So how much? 0.2 gram. So this is how we convert from gram to kg or milligram to gram, just by dividing the things. Okay, so this is how you will be dividing. Okay, you have to remember that 1 kg is 1000 gram, 1 gram is 1000 milligram. Okay, see, this 3 there is already in kg. ये 3 तो पहले से kg में है, we are not converting. So plus we will be converting this 70. So 70 divided by 100, 1000, sorry, 70 divided by 1000. So 0 to 0 cancel. Now 3 plus this 0 will take this 7. This 0 is not having anything, so it will be there. Then point, this will be point, then 0. So 3.07 kg. This is our answer, 3.07. Okay, one more question for you. Okay, see this 90 is already in gram, so we are not going to convert. We will convert this 3. It is in milligram. So when we are coming from milligram to gram, we are moving how many steps? We are moving 3. So that means 1000. So 90 plus, now this 0 will take this 3. Now this 0 is not having anything, so it will be there. This 0 is not having anything, so it will be there. Then decimal. So 0.003. So 90 plus 0.003, it is 90.003 gram. So this is our answer. That is correct. Everyone has done correct answer.